إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی عزت شان و شوکت ہما قسم کی تسبیح و تحلیل اسی کے لیے لائق و دیبا و سزاوار ہے اس کے تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود و لا تعداد درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برادران اسلام مہینے کی مناسبت سے الحمدللہ یہ دوسرا جمعہ ہے ربیع الاول کا اور
इस महीने में जहाँ उलमाए हक़ अपने हक़ बयानी के ज़रिए कुरान और हदीस की तालीमात को लोगों के सामने पेश करते हैं, वहीं उलमाए सू अपने पेट और अपने दुनिया को चमकाने के लिए इस्लाम को बदनाम करने वाले बयानात पेश करते रहते हैं। और इसका जायज़ा हम 2-3 दिन पहले अपने आँखों के सामने देख चुके हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपके सामने सुन्नत के मुताबिक जो खुतबा जुमा एक सुन्नत है, जो बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से ताल्लुक़ रखने वाली बातें आपके सामने बयान की जाएंगी। और इस सीरत को जानने से पहले ये बात आप जान लें कि अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, और रहमत के अंदर सुकून, इत्मीनान, खुशी हासिल होती है। और रहमत के ज़रिए इंसान कभी जो है ना बदकिरदारी, बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा नहीं करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ हम दीन इस्लाम को अपनाने के बाद दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं, इन तालीमात के ज़रिए दुनिया में अमन व सुकून का माहौल कायम हो जाता है और खराबियाँ इसके ज़रिए दूर हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको इस जुमा के खुतबे में ये बात बताना चाहता हूँ शुरू ही में कि जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, तो अल्लाह ताला उस रहमत की सिफत आपके अंदर वदियत कर दिया था, आपके अंदर वो पैदा कर दिया था। इसीलिए कुरान एक दूसरे अल्फाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की मेहरबानी, आप पर अल्लाह की रहमत हुई कि आपको अल्लाह ताला नरम दिल बनाया। लोगों के लिए आपके दिल में रहमत, हमदर्दी, मोहब्बत, रवादारी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला आपके अंदर पैदा किया, जिसकी वजह से मुख्तसर सी मुद्दत में सारी दुनिया को तुमने फतह कर लिया। वाकई बात, वलो कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। इन आयात से अगर उन अक्लमंदों को जाकर पूछो जो अभी परसों जो है ना मीलाद के नाम मौके पर जो है ना मार खाए पुलिसों की, बदनाम किया इस्लाम को, अपने अखलाक के ज़रिए एक ऐसी जो ना एक ऐसे तहजीब को दुनिया के सामने पेश किया कि इस्लाम भी एक नाच गाने वाला मजहब है। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसी तहजीब वाले दुनिया के अंदर कभी कामयाब नहीं होते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल मुद्दत में दुनिया को अमन सुकून का पैगाम दिया। दुनिया आपको चाहती थी, दुनिया आप पर कुर्बान होना चाहती, कुर्बान हो गई। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी सीरत, आपके किरदार को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने के बाद एक जगह कहा कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको दुनिया के लोगों को खुशखबरी और गवाही देने और क़यामत के दिन से डराने वाला बनाकर भेजे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हक़ अदा किया। तबलीग आपने दुनिया वालों को करके लोगों को, भटके हुए लोगों को जो ना राह पर लाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई, क्योंकि कोई भी आदमी किसी चीज़ को अपनाने के लिए उसका नमूना देखता है, उसका आइडिया देखता है, उसका आइडियल तलाश करता है, उसकी सीरत को पढ़ता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐलान कर दिया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बुलंद अखलाक पर फाइज हैं। कुरान मजीद ऐलान करता है। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात अपने नबी के मुतालिक तारीफ़ करती है, वहीं दुश्मनों ने आपकी ज़िंदगी में आपको लक़ब दिया अस्सादिक़ुल अमीन के नाम से आपको पुकारा।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके राह में जो ना रुकावटें, आपको तकलीफ़ दिया करते थे मक्का के मुशरिकीन, और आपको दुनिया से ख़त्म करना चाहते थे, ये तमाम चीज़ें और तमाम मंसूबे आपके मुतालिक दावत तौहीद पेश करने के बाद लोगों के दिमाग में आ गई। लेकिन जब एक इंसान आपके अखलाक के मुतालिक जाकर इन मुशरिकीन से पूछता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने 40 साल कैसे पाया, तो आपने कभी आपकी बदकिरदारी और आपकी बदअखलाक़ी का जिक्र नहीं किया, बल्कि यही कहा कि वो तो अस्सादिक़ है, वो तो अल अमीन है, वो तो हमारे दरमियान हमने उसे सच्चा पाया, हमने उसे अमानतदार पाया, बुलंद किरदार वाला हमने पाया। ये दुश्मनों ने जो ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गवाही दी, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जो दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे, क्या आज हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है? आज हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है? भाई गणपति त्यौहार में जुलूस उन्होंने निकाला तो हमने, मैं तो आपको इस हवाले से कहता हूँ बेदार ना हो मेरे भाइयों, क्योंकि उलमा किराम आपके सामने कुछ बयान करने के लिए आते हैं तो बहुत कुछ तहकीक, बहुत कुछ रिसर्च करके आपके सामने आते हैं, तो दुनिया की हालत भी, दुनिया की नक्शा भी आपके सामने पेश करते हैं। मैं गाँव का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमने सुना हमारे भाइयों से कि भाई जब गणपति त्यौहार में जो जुलूस उन्होंने निकाला, उनके पास ईमान नहीं, उनके पास अल्लाह का खौफ नहीं, उन्होंने अल्लाह को पहचाना नहीं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की पहचान कराने के लिए कितनी तकालीफ उन्होंने जो ना 13 साल ज़िंदगी में बर्दाश्त किया, और हम क्या कर रहे हैं? भाई उन्होंने जुलूस निकाला तो हम भी जो ना उससे बड़ा जुलूस निकालेंगे। करीबन जो है ना महाराष्ट्र से कहीं जो ना डीजे मंगाकर जो ना लोगों ने नाच गाना किया। ये तहजीब है? ये इस्लाम है? देख रहे हैं आप, यूट्यूब पर मारिए आप, मिलादुन नबी के नाम पर आपको क्या मिलेगा पैगाम। हम मुसलमानों ने क्या दिया पैगाम मुसलमानों इंसानों को। और आइए मैं आपको इसी के मुतालिक कुछ बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तमाम सीरतों में आपको सीरत तय्यबा के नाम से जाना जाता है। आपकी सीरत को, आपके कैरेक्टर को, आपकी ज़िंदगी के पूरे हिस्ट्री को जो ना जितने भी मुअर्रिखीन, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन तमाम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीरत तय्यबा के नाम से जानते हैं। क्यों? आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा मतलब, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग को खोल रहा हूँ। उस मुल्क में हमारी तादाद 30 करोड़ है, लेकिन जो कौम के साथ हम रहते हैं उनकी तादाद 100 करोड़ से ज़ायद है, 100 करोड़ से ज़ायद है। तो अब उस कौम के साथ हमको रहना है, उठना बैठना है, हमारी ज़िंदगी उनके साथ है, और हम मरेंगे तो हमको यही दफनाना है। हम अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने इस्लामी तालीमात को उनके सामने पेश करना है। ऐसे पेश करेंगे नाच गाना करके? नहीं, ये इस्लाम की शक्ल नहीं है, ये इस्लाम की शक्ल नहीं है, मनहूस शक्ल है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के सामने हम पेश कर रहे हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, सीरत तय्यबा किसे कहते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है? अल्लाह ताला ने क्यों हम लोगों को ये पैगाम दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जहाँ अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है कि मेरा नबी बुलंद अखलाक पर फाइज है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। दुश्मनों ने आपको सराहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं, काना खुलुक़ुल कुरान, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पूरा कुरान था। कुरान के अंदर कहीं है इस तरह का जिक्र? अहादीस के अंदर इस तरह का जिक्र है? हम एक मस्जिद में आते हैं, मुसलमान सुनते हैं, बस अपने अंदर ये एक जज्बा लेकर बैठते हैं, लेकिन हम अपनी तर्जुमानी दुनिया के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी तादाद ज़्यादा है। मिलादुन नबी मनाने वालों की तादाद ज़्यादा है। हुकूमत से वो लोग जो ना इजाज़त देते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ कि जब जो ना तहकीक की गई कि भाई एक जगह पाबंदी है, एक जगह इजाज़त क्यों है? वोट के भिखारियों ने जो ना तुम्हारे को रुसवा किया। देखिए ये बात भी बोल रहा हूँ, वोट के भिखारियों ने आप लोगों को रुसवा किया, आपके इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश की उन्होंने। ये समझने की बात है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सीरत तय्यबा का जानना बहुत ज़रूरी है। सीरत तय्यबा को क्यों जानना ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानेगा, आपके अखलाक को जानेगा, आपकी ज़िंदगी को जानेगा। मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो के अंदर कोई साहब एक आदमी को जो भीख मांगने के लिए आया था, वो कुछ लेकर उससे कहा कि भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम
एक मुस्लिम नाम उसने पेश किया। मुस्लिम नाम पेश करने के बाद कहा कि भाई तुम क्यों मांग रहे हो, जबकि तुम हट्टे कट्टे हो, जवान हो, तुम कमा के खा सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं मांग रहा हूँ। अच्छा, कहा कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान का नाम पेश कर रहे हो। कहा कि चलिए एक थोड़ा कलिमा पढ़ के बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं पढ़ सका, नहीं पढ़ सका। हमने देखा उसको कि वो आया लोगों को बहकाने के लिए, कहीं किसी मज़ार का हवाला देकर मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, फ़लाँ जगह का मुर्शिद हूँ और मैं जो ना लोगों से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आ रहा हूँ। तो एक शख्स ने कहा कि भाई चलो तुम मुसलमान हो तो ज़रा कलिमा पढ़ो। नहीं पढ़ सका वो, 2 मिनट इसरार करे, नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। तो कहा कि फिर तुम कैसे मुसलमान हो जब अल्लाह के रसूल का कलिमा नहीं जानते। तो ये मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज जितने भी लोग इस्लाम के नाम पर जुलूस निकाल कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनसे जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या आपकी कुर्बानियों का कोई एक वाक़या उनसे पूछिए कि इस इस्लाम को हमारे तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कुर्बानी मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो जुमा का खुतबा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है और इन हिंदुओं के साथ रहने के लिए मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, आपने किस तरह गैर मुस्लिमों के साथ सलूक किया, रवादारी की और आपके क्या अखलाक थे, हम इसको पेश करते इस महीने में, इसको पेश करते। मुसलमानों को, मुसलमान अगर दावत देते हमारे हिंदू भाइयों को कि आइए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जानिए कि आपकी ज़िंदगी क्या थी। तो सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक जो है ना, हाँ, सीरत तय्यबा जानना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक इंसान किसी के मुतालिक अच्छा नहीं जानता, उसके मुतालिक उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह की मारिफत होना चाहिए, दीन की मारिफत होना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत उसे होना चाहिए। और अगर ये तमाम चीज़ों में वो मुकम्मल है तो मोहब्बत, एक मोहब्बत नाम की चीज़ उसके दिल में पैदा होती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का ख्याल और जज्बा उसके अंदर आता है। वो कोशिश करता है कि मैं इन सुन्नतों पर अमल करके अल्लाह को राज़ी करूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत कल इंशाअल्लाह जो ना क़यामत के दिन में हासिल करूँ, ये चीज़ उसके अंदर पैदा होती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से एक बेहतरीन जो ना सीरत, आपके अखलाक, आपकी ज़िंदगी जो गैर मुस्लिमों के साथ रही, उन नुकात पर मैं इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तसर वक्त में पेश करने की कोशिश करूँगा कि हमको क्या करना है। हम उनके साथ बैठते हैं, उड़ते हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू है, उनके साथ हमारा लेना देना है, लेकिन आज मुसलमानों के नाम से ये एक ऐसी फिदा उनके दिमागों में डाली गई है जो आज से 30 साल 25 साल पहले जो हमदर्दी थी, इंसानियत थी, वो तमाम की ख़त्म हो चुकी है। ज़रूरत है आज हम अपने इस्लाम को उनके सामने पेश करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उनके सामने पेश करें। तो सबसे पहली बात सुनिए, गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी क्या थी। गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी क्या थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो ना उनके मुतालिक एक पैगाम दिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला ये हुक्म नाज़िल किया है कि अल्लाह, ऐ वो लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, जो लोग तुमको दीन के मामले में जो ना सख्ती नहीं करते हैं या दीन के मामले में, मजहबी मामले में झगड़ा नहीं करते हैं और तुमको जो ना अपने घरों से नहीं निकालते हैं, उनके साथ इंसाफ का सलूक करो। ये कोई आयत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक का मामला किया है, रवादारी का मामला किया है और कुरान इस बात की तालीम देता है। और इस मुल्क में हमको रहने के लिए जो ना प्लान बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म किया जाए, हो रहा है कि नहीं? ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसका इलाज कुरान बताता है, उसका इलाज कुरान बताता है। अगर हम, हमारे मुतालिक इस तरह की साजिशें रची जा रही है, इस्लाम हमको कहता है कि उन लोगों के साथ तुम्हें इंसाफ का मामला करो, उससे सुलूक का मामला करो, रवादारी का मामला करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मेरे भाइयों, आज भी जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में जहाँ 10% लोग ख़राब हैं या 10% लोग हमारे इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाह रहे हैं या फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वहीं 90% लोग अमन और शांति के चाहने वाले हैं।
अमन सुकून को चाहने वाले हैं, वो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। शर्त है कि उन तक पैगाम जाए, उन तक इस्लाम को जो ना पेश किया जाए। यही बात अल्लाह ताला इस आयत करीमा में बयान फरमाता है कि मजहबी मामले में तुमको कोई जो ना झगड़ता नहीं है और तुमको घरों से निकालता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ इंसाफ का मामला करो, रवादारी का मामला करो। इसी तरह मेरे मोहतरम भाई, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। ईमान वालो, हक पर कायम हो जाओ, हक पर कायम हो जाओ और हक के साथ गवाही देने वाले बनो, हक के साथ गवाही देने वाले बनो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुमको बेइंसाफ़ी पर आमदा ना करे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफ़ी पर आमदा ना करे। क्योंकि दुनिया के अंदर होता है कि किसी एक हिंदू भाई का मामला हमारे पास आ गया, हम उसके साथ ज़ाती दुश्मनी रखते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है जब इंसाफ का तकाजा तुमसे वो चाह रहा है तो तुम इंसाफ की गवाही दो, बेइंसाफ़ी का मामला उसके साथ मत करो। क्यों? इसलिए कि वो हमारी ज़ात का नहीं, वो हमारी मज़हब का नहीं है। इस्लाम इस बात की तालीम आपको नहीं देता। जब आपसे इंसाफ मांग रहे, गरचे उसकी दुश्मनी कैसे भी हो तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको इंसाफ की गवाही देना है। कुरान हमको ये तालीम देता है, अल्लाह तादिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इंसाफ की गवाही देना ये तक़वा के करीब है, रब के क़ुर्बत का हासिल करने का ज़रिया है। वअदिलु, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि इंसाफ करो ऐ मुसलमानों। आइए एक बहुत अच्छी बात बतलाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ क्या मामला किया। यहूदी जानलेवा दुश्मन था और आज भी दुश्मन है। इस्लाम का, मुसलमानों का सबसे गहरा दुश्मन यहूदी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी। ये सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू है, सीरत तय्यबा का एक बहुत बड़ा पहलू है और ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुखारी की रिवायत है और प्यारा वाक़या है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का कैसा बर्ताव किया, इंसाफ का कैसा मामला किया, ये वाक़या आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। एक यहूदी मदीने के बाज़ार में कुछ सामान बेचता रहता है, कुछ सामान बेचता रहता है, तो उस सामान को जो है बेचते हुए अपनी कुछ कीमत लगाता है और वो कीमत लोग पसंद नहीं करते हैं, लोगों को कीमत बहुत भारी लगती है और ये अपने सामान को अच्छा दिखाने के लिए और उस कीमत पर लेने के लिए इस तरह आमदा करता है, मैं कसम खाता हूँ उस ज़ात की जिस ज़ात को मूसा अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ, जिस ज़ात ने उनको बरगज़ीदा बनाया, मुअज़्ज़ज़ बनाया। इस तरह के अल्फाज वो कहता है। मदीने के बाज़ार में एक साहबी, बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। तो अल्लाह के रसूल सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी को नबी नहीं माना जाता था। ये कानून भी है आज भी आप मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम नबी का कलिमा पढ़े हैं, ना पीर का सुनेंगे, ना वली का सुनेंगे, ना किसी इमाम का सुनेंगे तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का सुनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा जो ना जज्बा था सहाबा का, सहाबा किराम रिज़वान अजमईन में से एक सहाबी उठे, गुस्से में जो ना एक छाटा मार दिया उसके चेहरे पर, यहूदी के चेहरे पर एक बार छोड़ दिए, जबकि वो यहूदी अमन सुलह का ज़िम्मा था और उसकी हिफाजत मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी। क्योंकि जो है ना मुआहिद, जो ज़िम्मी जो ना मुसलमानों के इलाके में होता है, उसकी हिफाजत करना मुसलमान हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उनसे अमन का मुआहदा कर चुके थे, सुलह का मुआहदा कर चुके थे और ये साहबी गुस्से में आके मार दिया। कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है और तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कसम खाता है। अब ये मामला गया अदालत में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ये बात पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में वो यहूदी वो जो ना पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस शख्स के मुतालिक क्या कहते हैं जिस शख्स को आप अमन दिए हैं, सुलह की ज़िम्मेदारी आपकी है, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी है और आपके साहबी जो ना उस शख्स के साथ इस तरह का मामला करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उस साहबी से पूछते हैं क्यों तुमने उनको जो ना इस तरह जो ना मारा। तो जब वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बात ये बाज़ार में कह रहा था तो मैंने मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो जाता, हदीस के अल्फाज, उस साहबी पर गुस्सा होते हैं।
हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना सुर्ख हो गया कि गुस्से के मारे आपका चेहरा पूरा लाल हो गया था। ऐसा गुस्सा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने जो काम किया वो गैर अखलाकी हरकत थी, आप नहीं मारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या इंसाफ की बात कहते हैं, इसे कहते हैं गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानो मेरे भाइयों। आपकी सीरत तैयबा से हम लोग बिल्कुल कोरे हैं, कासिर हैं, हम कुछ नहीं जानते कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुनो, पहले के अंबिया और मेरे में जो ना मुआज़ना मत करो, मुआज़ना मत करो, अफजलियत का मुकाम मत दो, दर्जा मत दो। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब पहला सूर फूंकने का हुक्म देगा, पहले सूर के बाद सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं बेदार हो जाऊंगा, बेहोशी से मुझे उठाया जाएगा। लेकिन उस मौके पर मुझसे पहले मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि जो मुझसे पहले जो ना अल्लाह के पास जो ना आप होश में आकर खड़े रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत मूसा को मुझसे पहले क्यों होश में लाया जाएगा, इसीलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर में अल्लाह ताला बेहोश कर दिया था। शायद उसका बदला है कि उनको वहाँ बेहोशी नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुकाम, मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुकाम है। तो अंबिया के दरमियान फ़र्क ना करो, अंबिया के दरमियान एक दूसरे को ऊंचा नीचा मत बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बताई उस यहूदी के सामने, इस्लाम और मुसलमानों को यह पैगाम दिया मेरे मोहतरम भाइयों। ये रवादारी और हुस्न सुलूक के मुतालिक एक अच्छी बात मैंने आपके सामने पेश किया मेरे मोहतरम भाइयों। ये जुल्म जो है ना इस्लाम ने पसंद नहीं किया। एक दूसरी चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम के अंदर जो सीरत तैयबा से ताल्लुक़ रखती है, गैर मुस्लिमों के जानों की हिफाजत। और गैर मुस्लिम हमको हिंदुस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं, उनको पैगाम दीजिए इस्लाम आपके जानों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे किया है, हमारे हवाले किया, हमको तालीम दिया है कि हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़तल मुआहिदन लम यरिहा राहियतल जन्ना, जो किसी ज़िम्मे को कत्ल कर देता है, किसी जो ना मुआहिद को जिससे मुआहदा हो चुका है, अगर उसे वो कत्ल कर देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारा पूरा मोहल्ला मुसलमानों का मोहल्ला नहीं है, हमारे साथ हिंदू लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। जितने मज़हब के मानने वाले लोग हैं उनको अमन सलामती देना, उनके साथ अखलाक के साथ पेश आना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई इंसान ज़िम्मे को कत्ल कर देता है, वो इस इंसान को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू तक नहीं पहुँचाता, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वह इन्ना रिहा तूजदु मिन मसीरत 40 आमन, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से दूर तक पहुँचती है। अल्लाह, एक इंसान यहाँ से सफ़र करके 40 साल तक सफ़र कर रहा है, वहाँ तक जन्नत की खुशबू जो ना पहुँचती है, तो वो खुशबू तक भी वो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जन्नती नहीं। मुसलमान को ये तालीम दी गई। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानों की कैसे हिफाजत की, आपके अखलाक क्या हैं, आपकी तालीम क्या है, और ऐसे नबी के मानने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह अकबर, शर्म आती है ऐसे मंजर को देखकर, ऐसे फ़ोटों को देखकर, ऐसे वीडियो को देखकर शर्म आती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने वाले लोग इस तरह का अखलाक का मुजाहरा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हमको क्या तालीम दी। कभी होता है ना हमारे दिमाग में इस तरह की बात आ जाती है। आज मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। ये इस बात को पेश करने के बाद हम अगर किसी हिंदू भाई के बाजू हमको सीट मिल जाती है तो हम लोग जाके बैठ जाते हैं। बस में हम सफ़र कर रहे हैं, दावनगिरी, हॉस्पिटल, कहीं पर भी हमको जाना है, बल्लारी, कोटूर वगैरह, हम अगर जो ना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमारे दिमाग को पाक किया, हमारे लिबास को पाक किया, हमारी ज़बान को पाक किया, हमारे दिल को पाक किया, लेकिन वो इंसान जो हमारे अपोजिट में है हमको पाक नहीं समझता है। अल्लाह, हम गवाही दे रहे हैं हम मुसलमानों को, माशाअल्लाह
आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर जुमा का खुतबा सुनने के लिए आप लोग आए हो और अपने आप को पाक समझ रहे हैं, आपके दिल में ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशाब से पाक, हम अपनी ज़बान से पाक, हम अपने दिल से पाक, लेकिन एक इंसान जो तुम्हारे बाजू बिठाना चाहता है उन्हें तुम्हारे को पाक नहीं समझ रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमने इस्लाम की सच्ची तस्वीर को पेश नहीं किया। हम मसलकों में बढ़कर मुसलमानों को बांट दिया, मुसलमानों को फ़िरक़ाबाज़ी में जो ना मुब्तला करके हम जो ना इस तरह कमज़ोर हो चुके। मेरे मोहतरम भाइयों, एक भाई जो हमारे दीन को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है और अल्लाह और उसके रसूल के दीन को मानने वाले को नहीं मानता है। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या तालीम दिया, इस्लाम के अंदर जानों की हिफाजत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे की, क्या तालीम दिया। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का जनाजा आया। क्या तालीम है, देखो अखलाक किसे कहते हैं, तरबियत कैसे होती है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई इंसान 4-5 भाई हम लोग खड़े हो गए, वहाँ से कोई गुजरने वाला इंसान हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है तो उसमें से एक बदअखलाक इंसान कह देता है नहीं छोटो, वो हमारे मज़हब का नहीं, वो हमारे दिन का नहीं। नहीं, हरगिज़ नहीं। इंसानियत की तालीम दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वाक़यात से, आपकी सीरत से इतनी प्यारी बातें हमको मिलती है मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी का जनाजा गुजरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा परेशान हो। साहबा को ये बात गिरा गुजरी तो एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा है, ये तो यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलैसत नफ्सन, क्या यहूदी इंसान नहीं था क्या? इतना सा लफ्ज़ सहाबा के जो ना उस सोच की जो ना इस्लाह कर दी। अलैसत नफ्सन, क्या यहूदी इंसान नहीं था? वो भी इंसान था, वो भी जो ना रवादारी जो ना सुलूक का जो ना मुस्तहिक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सहाबा की जो ना तरबियत की। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम आपसे कहते हैं कि अपने अखलाक को, अपनी सीरत को संवारने के लिए दुनिया वालों को मत देखो, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो। आइए एक तीसरी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में गैर मुस्लिमों के जो पड़ोसी होते हैं उनके क्या हुकूक बताएँ, क्या हुकूक बताएँ। शारीन हदीस जो ना इस हदीस के हवाले से बात बयान करते हैं कि पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं, पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया है कि जो ना पड़ोसी कोई भी हो उसका हक़ अदा करना चाहिए। तो उस हदीस के हवाले से उलमा कराम कहते हैं कि एक पड़ोसी आपका गैर मुस्लिम होता है, एक पड़ोसी तुम्हारा मुस्लिम होता है, एक पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार होता है। इन तीनों को भी हक हासिल है, इन तीनों के साथ तुमको जो ना हुस्न सुलूक का मामला करना है। पहला, अगर जिस मोहल्ले में तुम रहते हैं अगर गैर मुस्लिम भाई आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ रवादारी, हुस्न सुलूक, अच्छे मामला, अच्छे अखलाक का मामला करो। इस्लाम इस बात की तालीम देता है। क्यों? इसलिए कि वो इंसान है और इंसान के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम इस्लाम देता है। तो ये पहला हक़ है जो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ जो ना अच्छा सलूक करने की तालीम दी। और इसी तरह मुस्लिम और वो आपका पड़ोसी, इसे 2 हक़ हासिल हैं। एक तो मुसलमान होने का हक़, वो तुम्हारा भाई है, एक तो पड़ोसी होने का हक़, इसे 2 हक़ हासिल हैं। एक इसी तरह तुम्हारा रिश्तेदार होने का हक़, पड़ोसी होने का हक़ और मुसलमान होने का हक़। इस्लाम ने इस बात की तालीम दी है। तो गैर मुस्लिम अगर हमारे मोहल्ले में रहते हैं तो उनके साथ हम उनकी इयादत करेंगे, हम उनका माली ताउन करेंगे, हम उनके परेशानी में साथ देंगे, हम उनके जो ना तकलीफ़ के मौके पर साथ देंगे। इस्लाम हमको इससे नहीं रोकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज जो ना हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई इंसान हिंदू के धनगर मोहल्ले में रहता है, हिंदू के वाल्मीकि मोहल्ले में रहता है, अगर वो आप एक रहते हैं, वो लोग 10 रहते हैं, लेकिन आपके अखलाक की वजह से वो 10 लोग भी तुम्हारी कदर करते हैं, लेकिन वो कदर आज ख़त्म हो चुकी है। वो कदर आज ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? आज से 20, 25, 30 साल पहले हम लोग जिस मोहल्ले में पले पड़े हैं वो हमारे हिंदुओं का मोहल्ला है, धनगरों का मोहल्ला। कोई भी त्यौहार उनका, कोई भी ईद उनकी आती थी तो हमारे घर में तकरीबन जो है ना 2 किलो 3 किलो का खाना जो ना जमा हो जाता था। आज वो चीज़ ख़त्म हो चुकी। इस्लाम के असल शक्ल को हम लोग दुनिया के सामने ना पेश करने की वजह से आज जो हमारे दुश्मन हो चुके हैं, हमको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम उनके त्यौहार का खाना खाना जायज़ है, नहीं।
लेकिन एक हम भी अपने त्यौहार में, अपने ईदों में जब उनको खाना दिया करते थे तो उनके त्यौहारों में वो लोग हमको खाना दिया करते थे, लेकिन बाद में उनको बताया गया, उनको जो ना दिखाया गया कि भाई अल्लाह और उसके रसूल का दीन पाक है और ऐसी चीज़ें खाने से हमको मना करता है, तो वो लोग समझ गए इस तरह की तालीम की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि पड़ोसियों को हक़ देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि एक दिन उन्होंने बकरे को ज़बाह किया। बकरे को ज़बाह करने के बाद जब वो आए, गोश्त तकसीम करने का वक्त आया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा अपने घर वालों से, कहा कि क्या मेरे यहूदी जो पड़ोसी हैं, क्या आपने उनको गोश्त दिया, क्या आपने उनको गोश्त पहुंचाया? यहूदी जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, सहाबा उनके हुकूक को अदा करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये बात मालूम होती है और अहादीस के अंदर ये बात भी बताई गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादाला जिब्राइलु यूसीनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल मुझे हमेशा इस बात की वसीयत करते हैं कि तुम पड़ोसियों का हक़ दो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हत्ता ज़नन्तु, मुझे यहाँ तक यकीन हो गया, गुमान हो गया कि अन्नहु युवर्रिसुहु, अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये ना कह दें कि तुम अपने विरासत में भी उनको हक़ दे दो, ये बात कहीं ना कह दें, मुझे इस बात का खौफ हुआ। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम ने इंसानियत की जो तालीम दी, मैंने 3 पॉइंट पर बात किया। मैंने पहला जो पॉइंट आपके सामने बात किया कि पहले हमको ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को जानना चाहिए। जब तक इंसान सीरत तैयबा को नहीं जानेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, रवादारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गैरों के साथ कैसा रहा। मैंने तीसरा पॉइंट आपके सामने पेश किया कि पड़ोसियों के हुकूक क्या है, और 2 पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों वक्त साथ नहीं देता है। गैर मुस्लिमों के साथ हम हुस्न सलूक कैसे करना चाहिए और कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम जो ना हमें जो तालीम देता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सूरह जो ना हामीम सजदा की आयत करीमा है, अल्लाह ताला कहता है कि बुराई और अच्छाई एक नहीं हो सकते। देखिए मुसलमानों को क्या तालीम दी जा रही है, बुराई और अच्छाई एक नहीं हो सकते, लेकिन आप बुराई का बदला बुराई से मत दो, अच्छाई से दो। इदफा बिल्लती हिया अहसन, अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है, आप उसका जवाब बुराई में नहीं देंगे बल्कि अखलाक के साथ देंगे, अच्छाई के साथ देंगे। क्यों? ये इसका फ़ायदा कुरान खुद बयान करता, फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम्हारे और उनके दरमियान अगर गहरी दुश्मनी है तो इस अखलाक की वजह से वो तुम्हारा गहरा दोस्त हो जाएगा, गहरा दोस्त हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शायर कहता है, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक़्त। क्या प्यारा शेर है, देखिए, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक़्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा, हाथों से नहीं मारा। आपको मालूम है कि फतह मक्का के मौके पर आपके कट्टर दुश्मन जो ना आपके सामने आए, सबको माफ़ कर दिया। और मुअर्रिखीन लिखते हैं, तारीख़ में बात आई है कि जो लोग ताइफ में आपको बेहोश होने तक मारा था, वो दुश्मन भी जो ना आपके सामने फतह मक्का के मौके पर आए, उनको भी माफ़ कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मेहरबान थे, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे, ऐसे हमदर्द थे इंसानियत के लिए। हम क्या हैं, हम क्या है मेरे भाइयों? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आखिर में मैं इस खुतबे से ताल्लुक़ रखने वाली बात एक बात कहकर जो है ना अपनी आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वअतइमुल जाई वऊदुल मरीज़, और हदीस है वफ़ुक्कुल आनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सुन्नतों को बयान किया है कि तुम भूखे को खाना खिलाओ और मरीज़ की इयादत करो, और इसी तरह जो है ना कैद खाने में रहने वाले कैदी को आज़ाद कराओ। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है मेरे भाइयों। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वो आतिमुल जाए, अगर कोई भूखा आपके मोहल्ले में रहता है, कोई चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखना हो, इस्लाम तुमको तालीम देता है कि तुम अपने पेट को भरते हो तो भूखे के पेट को भी भरना, ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये काम करो मेरे भाइयों, ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह मरीज़ की इयादत, हम अपने रिश्तेदारों की भी इयादत नहीं करते हैं, तो फिर मोहल्ले में रहने वाले जो ना मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनकी इयादत कैसे कर सकते?
बहुत अच्छा पैगाम जाता है। इससे मालूम है आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि मरीज की इयादत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी का बच्चा जो इंतकाल के वक्त था उसकी इयादत करते हुए उसको इस्लाम पेश किए कि मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अब दुनिया से रुखसत होने वाला है, तो अब वो दुनिया से रुखसत होने वाला है। ऐसे मौके पर कहते हैं कि तू कलमा पढ़ ले बाबा, क्योंकि खादिम था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बच्चा जब अपने बाप की तरफ देखता है तो बाप कहता है कि मोहम्मद जो कहते हैं वो पढ़ ले बेटे, वो कर ले, और वो बच्चा कलमा पढ़ लेता है, रूह कब्ज़ हो जाती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला इसे जहन्नम से बचा लिया। मेरे भाइयों, मैं एक अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारा हक नहीं, क्या मेरा और आपका हक नहीं कि इस पैगाम को हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को हम पहुँचाएँ? क्या हम ही जो है ना जन्नत के जाने के मुस्तहिक है? वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। हमने अखलाक को पेश किया या नाच गाना करके हमने उनकी तहजीब को अपनाया? यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हमारा जो अखलाक़ी फरीदा बनता है कि मैं और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया के सामने पेश करें, आपके अखलाक को दुनिया के सामने पेश करें। आप अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहे और गैर मुस्लिमों के साथ क्या क्या किया, ये किताबें भरी पड़ी हैं। बस हमने किताबें सुन लिया, लेकिन हमने अपने अखलाक से दुनिया के सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करने की कोशिश नहीं की। हमें ज़रूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना सीरत को दुनिया के सामने पेश करें। आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से और आपकी शरीयत से, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब जुमा का खुतबा शुरू होता है उससे पहले मस्जिद आने की कोशिश करें, मस्जिद आने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, शिकायत नहीं, हम देखते हैं कि जब मेंबर पर कभी हमको मौका मिल जाता है, लोग ऐसा उतरते हैं गोया पेशेंट, यहाँ तो नहीं छोड़ो, मस्जिद को आते हैं कैसा मालूम है, पेशेंट की तरह। उनके अंदर एक जज्बा नहीं होता है, भाई सुन्नत है, कहीं मौज़न जो ना अज़ान देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौज़न के अज़ान के ख़त्म होने के बाद सवाब से महरूम हो गया उन्हें। ये जज्बा नहीं, हम क्यों आ रहे हैं मस्जिद, हमारा मकसद क्या है, हमें क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, इतनी गफलत में रहने की वजह से आज हम दुनिया वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं। हमने देखा एक जगह, माशाअल्लाह, मैं वो आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक गाँव में हम लोग गए तो वहाँ जितने भी मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के, अहले हदीस मसाजिद के अंदर खुतबा मुख्तसर हो रहा है। हमने एक हिकमत पूछा कि क्या बात है कि अज़ान से पहले तुम्हारी मस्जिद फुल हो गई। तो वहाँ के ज़िम्मेदारान ने कहा कि मौलवी साहब, हम लोग जो है ना खड़े होकर जुमा के बाद 3-4 जुमा हमने लोगों से अहद लिया कि क्या भाई आइंदा जुमा आप आएंगे तो अज़ान से पहले आएंगे कि अज़ान से बाद में आएंगे, बोलो भाई। तमाम लोग बोले कि नहीं, इंशाल्लाह हम लोग आधे घंटे का खुतबा सुनना है, वो सुन्नत है, हमें ये आधे घंटे की इबादत को जो ना अज़ान से पहले आते हैं करके, उसके बाद माशाल्लाह सक्सेस हो गए। उलमा किराम भी माशाल्लाह कुछ अच्छा जो ना बोलते, आधा घंटा सुनते, एक अच्छा पैगाम लेके जाते। वो काम आप लोग भी करो भाइयों, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके जो ना सुन्नत के मुतालिक आप सुना तो कोई 1:30 बजे आ रहा हूँ, उनको क्या मेरे 1:30 बजे खुतबा होता है, 1:30 बजे के बाद जाकर नमाज़ पढ़ेंगे? नहीं, सवाब से महरूम है आपको सवाब पाना है जुमा के खुतबे का, नमाज का, तमाम चीज़ों का। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपको अज़ान से पहले मस्जिद में आना है, ये हक़ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो भी बातें हमने कहा है अल्लाह खुलूस नियत के साथ इसे अपनाने, इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।